and start. And the flow is I'll do a quick introduction about YI. We have a 2-minute video to play, and then I'll introduce Ayush, and Ayush will take it forward. I'll introduce you and Ayush both. Lovely. And so, Sandeep, are we ready to go live? We are already live, Pradha. You can start. Yes. Oh, okay. So great. A lot of people have been listening to us. So, okay. Good evening, everyone. Very warm welcome from YI. Thank you all so much for joining us today. A little bit of technical glitches, as you have seen some behind the scenes information that was being shared right now. So just for people who are not part of YI, just a small introduction. Welcome to this very interesting webinar, which is organized by a special interest group of YI, which is called the Investors Connect. YI is a movement for Indian youth to converge, lead, co-create, and influence India's future. We are an integral part of Confederation of Indian Industries, a non-profit, non-government, industry-led organization playing an active role in India's developmental process. YI was formed in the year 2002 and has around 29,500 students, has UA members. We are spread across 55 chapters in India with more than 3,600 direct members. We primarily work in the domain of youth leadership, nation building, and thought leadership. Sandeep has a small video to play about YI. Sandeep, can you play the video, please? And then start with the introduction of the speaker. If there is a sport that you love, play it. Believe in it till it takes you above. If there is a dream that you dream, you can realize it better with a team. For we, young Indians, are the voice of the nation and dream of realizing its true representation, our India, to be built on 3 pillars we worship: youth leadership, nation building, and thought leadership. Every young leader has an inspiring story, full of struggles and incomparable glory. We lead and inspire every day. We make leaders of tomorrow and today. 3,600 young leaders we brought together, tying 55 city chapters in a single tether. With one progressive goal and one voice, for all young Indians to lead by choice. Entrepreneurs, professionals, and achievers, an ever-growing tribe of young believers. With empathy, compassion, and responsibility, each one excelling as per their own ability. Touching lives, both urban and rural, stronger communities, a cultural mural. Building a better India is our mission. We are passionate young Indians, leading with one vision. Young Indian members lead in many ways. Year on year we shine like positive rays. Contribute to our ecosystem and nation as one. Join Young Indians, a movement second to none. Inspire youth leadership. Lead towards nation building. Be the voice to spark thought leadership. We can, we will. Lead with Young Indians. Apply for membership in your city chapter. Visit youngindians.net and lead the change. Thank you, Sandeep. Yeah. So guys, our speakers for today, we are super excited, super humbled. They do not need any introduction for people who are in the market, but still, thank you, Mr. Bansal, for joining, and thank you, Ayush, for helping us moderate this session. For people who are still not aware, Mr. Varinder Bansal has over 15 years of work experience in equity research. Prior to foundation of Omkara Capital, he was a fund manager of an AMC, and prior to this, he was a corporate editor and head of research at CNBC TV18. He holds a degree in MSc Finance and MBA from Finance. He has spent the last 15 years in Mumbai learning from people across spectrum, some of
some of whom are his mentors, and applying his strong fundamental skills and hard-nosed number crunching and analytical skills to identify investment ideas. His strength in years of experience in identifying not so fashionable stock ideas. Most of these ideas have been the bedrock of small fundamental analysis, superior balance sheet reading, and understanding high quality promoters. He has coupled this approach with strong feedback mechanism, which is effective due to his deep-rooted connections with equity market veterans and leaders of corporate India. Very formal introduction, but I have seen a lot of your YouTube videos, and I'm a big fan of the way you research. Very warm welcome to YI. Ayush Mittal is our member from Lucknow. Also needs no introduction. He's a co-founder of Screener.in, a tool which I'm sure the audience here uses extensively. And he's also a fund manager. Without wasting much of your time, I hand over the floor to Ayush. This is all yours, Ayush. Thanks, Pranav. Hi, friends. I'm really excited to have this session today, wherein my dear friend Varinder is here to educate us and take us through his learnings. I would like to keep this session a bit informal and interactive, and that is why I've been put into this spot. But I thought कि ये बहुत ही अच्छा idea है जहाँ पे Varinder ji is doing so many fabulous interviews, and I get an opportunity to interview him today. So all those who are following Omkara would be really enjoying and learning so much in last few months, जहाँ पे इन्होंने best of the people of industry को लाके सबसे अच्छे मतलब ऐसे sectors जो एकदम ही unknown थे, cheap थे, बहुत value थी, उसमें क्यों वैल्यू है सबको समझाया, इतना सिंपल टर्म्स में किया है कि इट हैज बीन अ ग्रेट हेल्प एंड वैल्यूएशन फॉर मी. सो थैंक्स वरिंदर जी फॉर दैट. एंड बिफोर आई मूव ऑन टू अ सेशन, आई वुड लाइक टू शेयर 2-3 थिंग्स अबाउट वरिंदर जी व्हिच आई एब्सोल्युटली लव. मतलब इन लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय इंटरेक्शन, मोस्ट ग्रेट थिंग अबाउट दिस पर्सन इज द पॉजिटिविटी. आई थिंक जब लास्ट 2-3 साल जब मार्केट के कभी भी खराब भी होते थे ना, I used to call Varinder ji, and इनकी आवाज सुनते ही मतलब he'll just pep you up. He'll make your day bright. He is the guy. If you're ever in any आपको कोई help चाहिए, कोई company पे research करना, he's always open. He'll give you all his notes, and his notes are superb. In one pager, you will get everything about that company which is relevant for your understanding. So I have a lot of respect for him. And I've seen his evolution. I think from CNBC days where we used to enjoy his videos. Did you know series chalti thi, which was very, very useful. And then as a fund manager, jahan pe bahut si small and mid cap space pe he did in-depth work. And now with Omkara, I think the team he's building, the kind of in-depth work that he's doing, that is really fabulous. And I'm stunned by what he and his team are doing. So I thought कि हमारे YI members के लिए this would be a great opportunity where we get a sneak peek into what he does, what his learnings are. So Varinder ji, over to you. I think there's a small presentation also which you have, which you like to share with us. And if anything you want to start with your journey or something, maybe just आपका कैसा रहा ये CNBC से to managing Omkara now, and why Omkara now, a bit in brief in a minute, and then maybe you can start your presentation. आयुष भाई, आपको नहीं पता कि मैं कितना नर्वस हूँ आपके सामने, ठीक है? बट प्रणव भाई, उससे पहले आपका आईपीओ कब आ रहा है? आपका प्रेजेंटेशन जो 2 मिनट का वीडियो था, ऐसा लग रहा था पक्का कि अभी प्रेजेंटेशन में करके आप आईपीओ डिक्लेयर करने वाले हो, बिकॉज आईपीओ का टाइम चल रहा है अभी. So आयुष भाई, आई एम नर्वस. मुझे पता है कि आप यहाँ पे बैठे हो कि मैं आपके सामने कुछ बोलूंगा. इट्स लाइक आपसे कितना सीखा मैंने. But I will try to put whatever I can. And honestly, you have a lot of time showed me the right path, which I'm always grateful to. I remember the Chennai episode also, Chennai talks, जो हम थे, तो आपने हमेशा अच्छा रास्ता दिखाया, which I will always be grateful. तो बोलते ना, अभी तो ली है हमने लड़ाई, बाकी है बहुत लड़ाई. तो I think हम लोग सब रोज यही करते रहते हैं. So I will try and put my thoughts into a presentation. फिर आप, you can interrupt me anywhere, wherever you want. Whatever things I can share, they'll say पूरे का पूरा, in a simple Hindi language. I will try. I hope I've been given an access to share the presentation. So this is, I'll not take a lot of time, Ayush bhai. I will go with what I know and what I have learned. Okay. Again, in investments, in equity markets, in trading, in whatever you say, everyone will have different style. So मैं सही हूँ, ये सही नहीं है. आपका अलग स्टाइल हो सकता है, वो अलग चीज है. But this is what I think. ठीक है ना?
I think the most important thing which I have learned again and again is like getting rich is okay, but staying rich is most important. Stay rich बहुत जरूरी है. So again and again we try and emphasize कि हम कुछ भी करें, गलतियां तो होंगी, वो हमेशा part and parcel है. But stay rich is more important, and we have to focus on that. This is a mandatory disclaimer. Of course, I am very, very biased. जो भी मेरे पास है, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मेरे clients के पास है, I'm very biased. So please take me with a truckload of salt and whatever. See, and just to add, it's but obvious that during the presentation we may discuss some names Yes. and all. Please don't consider them as any recommendation. 100%. It's more for the education of people, wherein we take examples to share what we have learned. Yeah. So Ayush bhai, a lot of people ask me कि आप value investor हो, आप growth investor हो, आप momentum investor हो, all those terms are being used. And to be honest, and I will be very honest कि ये सब media पे होता है ना, मीडिया में जो दिखता है ना, I think 80% 90% people think जो उनको दिखाया जाता है टीवी में या फिर वो जो पेपर पे बार-बार आता है. I think one thing I have learned again and again is कि अपना काम है पैसा बनाना. There will be a lot of opportunities which will come. A lot of opportunities come your way. Now, whether you monetize them via being a long-term investor or short-term investor or a trader or whatever, it all depends on your skills. So, investment कोई आर्ट साइंस नहीं है कि उसको 1 2 3 4 करके चलेगा. इन्वेस्टमेंट मतलब आपको आपका स्टाइल बनाना है, जैसे भी आप बना सको. गलतियां होंगी, बस उसे रिपीट मत करो. I always say that मेकिंग मनी इज वेरी वेरी डायनामिक इन मार्केट्स. मगर एक चीज नहीं चलती है, मगर इट इज नॉट कि उसका रिसर्च अच्छा है तो वही अकेला पैसा बना सकता है. मगर यू नीड टू हैव रिसर्च, यू नीड टू हैव कॉर्पोरेट कनेक्शंस, यू नीड टू हैव सम मार्केट इंफॉर्मेशन, ग्राउंड चेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे जरूरी चीज है स्टेइंग हंग्री. स्टेइंग हंग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मार्केट्स. मगर देयर आर मेनी वेज टू मेक टू फाइंड अ विनर. बट I see that hungerness, and I know Ayush bhai also, because I know a lot of people in the market जो आज भी एक नए स्टॉक आइडिया को बोलोगे ना तो रात को 2 बजे भी उठ के बोलोगे अरे अरे बता, इसके बारे में बता, अरे क्या सुना, कैसे सुना. वो हंगरनेस रात को 2-3 बजे भी किसी को व्हाट्सएप डाल दिया तो ऐसे उठ जाएंगे वो. तो अच्छा इसका नंबर यहाँ से कैसे आया. द रीडिंग पार्ट, आई थिंक रीडिंग पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि क्या स्टॉक लें, बट कोई ये नहीं सोचता, बोलता कि क्यों स्टॉक लें. Either Q is more important than क्या लें. I always say कि it's very fashionable to talk about a lot of things. Like आज Zomato के बारे में सब बात कर रहे हैं. And I can tell you कि Zomato अगर 20-30% भागेगा, whatever, पहले दिन भागेगा, दूसरे दिन भागेगा, वो लास्ट 1 महीने में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50% ऑलरेडी भाग चुके हैं. So it's very fashionable. Fashion only works on ramp. स्टॉक मार्केट में नहीं करता. हाँ, अगर आपने एंट्री सी मार ली है Zomato में, वो आपकी मर्जी है. But I'm saying there are various ways to make money. अपना तरीका क्या है, अपने को उसमें जाना चाहिए. And this quote from Warren Buffett again and re-emphasize कि बॉस किसी को भी ना जो बड़ा पैसा कमा, no one wants to become rich slow. This is the most important thing कि सबको बड़ा बनना होता है ना, कि पैसा ज्यादा कमाना है कि जल्दी कमाना है, सबको जल्दी कमाना है, ज्यादा नहीं कमाना. These are small things. I thought कि I'll share these things so you understand कि मेरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कहाँ से आता है. तो आई एम टोटली कि बनिया इन्वेस्टर की जो सस्ता मिलेगा वो लेगा, सस्ता और अच्छा लेना चाहता हूं मैं. सो ग्लोबली कहीं भी देखें तो बहुत कम कंपनीज है जो 50p के ऊपर ट्रेड करती है. इंडिया में वी हैव मेड इट अ फैशन की चलो ठीक है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट अभी भी 30 से 40 पे अभी भी ट्रेड करती है. मगर यू लुक एट द नंबर्स, अल्फाबेट 35 टाइम्स, एप्पल 32 टाइम्स, माइक्रोसॉफ्ट 38 टाइम्स. आई एम समटाइम्स सरप्राइज्ड व्हेन यू लुक एट कंपनीज लाइक जो US MNCs in company where you have parents listed in US, the parent companies will be trading at least half the multiple of the Indian companies and with at least double or triple dividend yield. Whirlpool is a classic example. आप Whirlpool का example दे, I can give you numbers. जब भी आपको टाइम हो तो Whirlpool India और Whirlpool US को कंपेयर कर लीजिए, and I will show you, Ayush bhai, the outperformance of Whirlpool US. Whirlpool US is up by 2 times or 3 times compared to India. लेकिन यहाँ पे because टीवी में बार-बार वो it's very sexy to say कि बहुत अच्छा कंपनी, बड़ा कंपनी बोलो तो ज्यादा पैसा बनता है. तो my idea is that you buy cheap and add expensive. It is very very important. Don't average. You can average at high levels but not at lower levels. So this is one lesson which I've learned कि कई बार क्या होता है कि हमने 200 पे कोई चीज ले लिया, 300 पे बोलता है बेच दें. But I think जो बड़ा पैसा कमाते हैं वो 300 पे लेते हैं, 400 पे लेते हैं, because if they are convinced that the company is doing what they entered into, they have the guts to buy double, triple also.
So a lot of retail investors. This is definitely a very important slide, especially at the retail level. We see ki there's a beautiful quote said by Peter Lynch ki water your flowers, cut your weeds. Yeah. So what we do is opposite usually, because yeah. Agree. See, मैं हमेशा बोलता हूँ कि see हर market में ना, see I have been into markets and मेरे खुद ने नहीं, I have seen a lot of people in the markets. तो मेरा थोड़ा मीडिया का ये फायदा रहा है कि I have not seen, I have interacted with a lot of people. So I can tell you कि last 15 साल में मैंने वो होता ना हर मौसम में कौन आया कौन गया वो सब देखे हुए हैं. बट लास्ट 15 साल से 20 साल से आयुष भाई आप सोच के देखो, हम आज भी जितना हम बात करते हैं 15-20 साल से अपने को टॉप के 10 लोग वही बात करते हैं जो पहले थे. आप आरजे का नाम लेते हो, मधु का नाम लेते हो, आरकेडी का नाम लेते हो, आरडी का नाम लेते हो, लाइक 2-5 ऐड हुए होंगे, बट मोस्टली वो 10-15 लोग वही हैं. और 20 साल में होता क्या कि एक मौसम आता है मिड कैप स्मॉल कैप का, उसमें कोई नाम बड़ा बन जाता है, फिर कुछ मौसम आता है कि वैल्यू स्टॉक्स का वो बन जाता है. द आइडिया इज दैट सी एवरीवन कैन मेक मनी. ट्रस्ट मी, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक मनी. The difficult part is to stay with that money, और staying on the wicket is most important. अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया ना कि जिसमें होता है ना कि आपका विकेट ही चला गया, then आप मार्केट को गाली देते रहोगे, आप बोलोगे स्टॉक मार्केट ये है, स्टॉक मार्केट वो है. आई थिंक the idea is that विकेट पे खड़े रहो. विकेट पे खड़े रहना बहुत जरूरी है. And see, I am as I said कि बॉस मेरा तो पैसा बनना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से बनता है, चाहे ट्रेडिंग से बनता है, जैसे बनता है. बट लेट मी टेल यू आयुष भाई, speculation or trading requires a very, very, very special skill, which actually it is not with me. I love this quote. Speculation requires a human quality of accepting defeat and booking losses sooner than later. ये चीज ना बहुत लोगों में नहीं है. Like speculation or trading can only make you money if you are a very disciplined investor, disciplined trader. But वो book loss करने वाला जिगरा बहुत कम लोगों में होता है. Now, why I like mid cap and small caps? It's very simple. एक तो पैसा ज्यादा बनता है. एक दूसरा सिंपल सी बात है कि अगर Zomato लेना है या Reliance लेना है या आपको कोई HDFC बैंक लेना है, वो लेता है जिसके पास 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ डालने को है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अब बड़ा वाला फंड वाला तभी आएगा कि उसको अगर छोटा कंपनी में जो आयुष भाई ढूंढते रहते हैं, उस कंपनी में हमें कभी कभी 1000 शेयर लेने के लिए भी 5 दिन लग जाते हैं. तो बड़ा कंपनी, everyone wants small cap, mid cap, but they can't go into it because उनको liquidity मिलता नहीं है. And you see the performance. आयुष भाई ये मार्च तक का डेटा है, and it is by Embed ACE से डेटा निकाला हुआ. You look at the way earning surprise has come. ये बाद में हम देखेंगे DIS का किस तरीके से total holding है, FIS का कितना है, retail का कितना है. The earning surprise for large cap in March was only -2.8%. Minus था, negative था. Whereas mid cap में it was positive 4.1%. एक तो होता है लार्ज कैप स्मॉल कैप है. आई डोंट इवन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दिस. आई एम जस्ट सेइंग कि अर्निंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है. आप अर्निंग्स देखिए, दिसंबर में इट वाज 4.8% फॉर लार्ज कैप. द अर्निंग सरप्राइज 11.5% फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप 9%. इट इज कंसिस्टेंटली गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट एटलीस्ट 4 क्वार्टर्स. तो एक क्वार्टर का बात नहीं है. 9.5% सितंबर में था, 15.5% अर्निंग सरप्राइज मिड कैप का आया. सो मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ कंपनीज हैं, बहुत कंपनीज हैं इंडिया में, earnings growth आ ही रहा है. I would also like to add, I think what also happens is कि smaller mid cap में though the companies change, but overall this space में companies are more adaptive. They adapt to times very quickly, and that is why perhaps they are able to come out and become stronger with times. See, आयुष भाई मैं सच्ची बोलूं भाई, what is small cap mid cap? Honestly मैं बोलूं, you have to look for spaces जहां पे कि उस इंडस्ट्री में देयर आर स्टिल 2 or 3 लीडर्स, 2 या 3 कंपनीज ही हैं. यू डोंट गो, माय स्टाइल इज नॉट टू गो फॉर अ इंडस्ट्री और सब इंडस्ट्री जहां पे मालूम चलेगा 10-15 लोग हैं. पीई रेटिंग कैसे होता है कि जब आपको मालूम है कि छोटा इंडस्ट्री में भी 1 या 2 प्लेयर्स ही हैं. जैसे म्यूजिक था, उसमें 2 ही लोग हैं सारेगामा टिप्स लिस्टेड में. आपको एब्रेसिव्स में देखेंगे तो 2 ही प्लेयर्स हैं. So India में, और and these are companies not run by छोटा मोटा industrialists. These are run by 15, 20, 25 साल का experience है. So when people say कि small mid cap, I say कि what is the opportunity size of the sector and what you are participating, that is more important. Anyways, I can talk about that.
बट मैं आज आई थॉट कि वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट मेरे दिमाग में 2-3 चीजें थी, सो आई थॉट आई जस्ट पुट देयर. I think for me stocks don't make big money. अच्छा, of course, मतलब ऐसा नहीं स्टॉक पैसा नहीं बनता, बट बड़ा पैसा जो बोलते हैं ना, बड़ा पैसा स्टॉक्स में नहीं बनता. I'm sure a lot of people are confused. I think the most important thing is that if you identify big trends or you identify big groups, then you make very very big money. Now let's start with the big groups in India. ठीक है, अभी आप अपने जूम पे किसी को पूछना है तो एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट अडानी. इफ आई टेल यू कि बॉस व्हिच इज द सेकंड ग्रुप इन इंडिया पोस्ट अडानी जिसने लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल में बड़ा पैसा कमाया है, यू कैन टेक अ गेस. आयुष भाई, I have not done much data about groups. नहीं, अपने but, चैट रूम में आएगा ना आपके, ये प्रणव भाई बताएंगे ना. Tata. और लेट्स वेट फॉर लाइक 10 seconds. RPG, Tata. What all chats are coming? Bajaj, Murugappa. तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, जी. ठीक है, ये मैं आई शो यू द एग्जैक्ट डेटा. ठीक है, ये तो अडानी ग्रुप है. सी माय सिंपल पॉइंट इज कि अगर आपने अडानी ग्रुप 2 साल पहले पकड़ा होता, आपके पास अडानी एंटरप्राइज होता, पोर्ट होता, ट्रांसमिशन का, ग्रीन होता, पावर होता, सब में पैसा बना होता. सो ये हम डेटा कैलकुलेट करते रहते हैं ऑन अ लाइव बेसिस. ठीक है, सो दिस इज लास्ट 10 years डेटा. सो चेंज फ्रॉम जुलाई में कि ये 1 साल का डेटा, ये 2 साल का, 3 साल का चेंज, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का. सो मैक्स को मत पकड़िए, बिकॉज मैक्स हेल्थ केयर अभी भी एस वाला मैक्स हेल्थ केयर को डालता है. मैक्स हेल्थ केयर अभी डिफरेंट कंपनी बन चुकी है, तो मैक्स को निकाल सकते हो. बट अडानी ने अगर ग्रुप सी, अगेन मैं परसेंटेज में बात करूंगा, एब्सोल्यूट नहीं बात करूंगा. एब्सोल्यूट बात करूंगा तो ऑफकोर्स वो सब बड़े बड़े आ जाएंगे. तो अगर मैं आई कैन शो यू, आई विल जस्ट ट्राई एंड ओपन द एक्सेल सो दैट यू नो आपको ज्यादा होता है ना, आप बोलते हो ना कि तुम लोग काम कैसे करते हो वो बताना. सो एटलीस्ट ये पता चलेगा कि दिस इज नॉट अ कहीं से उठाया हुआ डेटा नहीं है. So this is one of the in-house in-depth database that Varinder ji and his team have worked on, and they extensively use it to do their research. So I had requested him to give us a sneak peek into how they go around picking data. And I believe, sir, this is somewhere from there. नहीं, हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और चीज कर सकते हैं. बट द पॉइंट हियर इज कि जो ग्रुप्स है, अडानी के बाद किसी को दूसरा याद ही नहीं है. ठीक है, अभी इसमें मैक्स आता है. मैक्स को मैं ले नहीं रहा हूं बिकॉज मैक्स हेल्थ केयर में डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, बट एस क्लब्स इन दिस. ओके, उसके बाद यू विल हैव ओपी जिंदल ग्रुप. अभी ओपी जिंदल में 3 भाई है, 3-4 भाई है, सब अलग है, सबके नाम आ जाते हैं. But look at the value creation in percentage wise. Of course, again, I want to repeat that. The JSW Steel, JSPL, JSW Energy, Jindal Stainless, Hisar, Jindal Saw. मतलब see boss, ये कंपनीज 2-2, 3-3, 4-4 गुना हो गई हैं. You know, again आप बोलोगे चलो ठीक है इसका है. Look at another group हमने देखा था, संजीव नहीं, उसमें डालमिया भारत. डालमिया भारत 12,000 करोड़ का मार्केट कैप था, आज 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है. डालमिया भारत शुगर 1,000 करोड़ का मार्केट कैप था, आज 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है. अगेन मैं प्रेजेंटेशन में अगर जाऊं तो सॉरी, हाँ ठीक है. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट उसके अडानी के बाद यू कैन सी दिस डेटा. ओपी जिंदल, डालमिया, सीके बिरला, संजीव गोयनका, केके बिरला, एंड ऑफ कोर्स ऑल द फैंसी नेम्स. सॉरी, बाकी जो फैशनेबल सेक्सी नेम्स होते हैं, एचडीएफसी ये पड़ा, M&M ये पड़ा, एंड यू कैन सी फ्रॉम द लास्ट 2 years, 3 years, 4 years, 5 years जो भी आपको डेटा देखना है. बट a big, see, when there is a change which comes in the group ना, it does not come in one company, but it comes across. And of course then your strength lies how you identify कि उसमें सबसे बड़ा विनर कौन सा हो सकता है अगर वो चेंज ग्रुप में आ रहा है. See, आज हम HDFC की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि HDFC पकड़ लो या HDFC लाइफ पकड़ लो या HDFC का कोई और बच्चा पकड़ लो, सब HDFC वाले जो होंगे सब अच्छी होंगे, बिकॉज दैट इज अ माइंडसेट व्हाट वी रन विद. यू सी द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डालमिया भारत, मतलब दीज आर कंपनीज जो 3-3 गुना हुई हैं.
CK Birla Group, I don't hear a lot of people on TV talking about how CK Birla Group has actually transformed. Birlasoft, Orient Electric, HIL, Orient Cement, most of these companies है क्या थी सर यार, 3-4 गुना हो गई हैं. Look at the way most of the stocks have done superly well. Again with numbers, okay? Not only stock prices. Sanjeev Goenka Group, इसको ऑनेस्टली हम सॉरी एक साल पहले जब सारेगामा चालू किया था, हमने 500-600 पे कवर करना, सब गाली देते थे कि चोर है चोर है चोर है चोर है. And see the transformation which started from them paying dividends from all our entities, whether it is First Source, whether it was CSC, whether it was Saregama, and that mindset change for everything. And of course we all know how CSC, Saregama तो चलो अलग ही हो गया, First Source, Philips Carbon, RPG Ventures and all. But again, you may like or not like a particular company in the group, that's obvious. But I'm saying you have to keep a tab also on the groups, and I see very less number of people talking about the groups in India. So if you see the same data for the last 6-7 years, then you will understand कि बॉस क्या हो रहा है, actually change क्या हो रहा है. One second thing is कि big trends. I think again I'm a very 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 firm believer कि अगर आपने ट्रेंड सही पकड़ ली तो आपका पैसा बहुत बनेगा. और ट्रेंड्स में सबसे पहले मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा कि नेवर बी रिजिड. बिकॉज व्हेनेवर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टील टू केमिकल, जब 3 साल पहले बात करते थे सब बोलते थे कमोडिटी है यार. स्टील की बात करना चालू किया तो बोलते कमोडिटी है यार. शुगर बोला तो और गाली मिला कि कमोडिटी है यार. पीएफसी की बात करो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ. सो एवरीवन इज सो रिजिड समटाइम्स कि होना नहीं है, ये कुछ होगा नहीं. बिकॉज आवर माइंडसेट इज दैट नाउ वी विल ओनली रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स. सो 2 साल में पैसा नहीं बना, 3 साल में पैसा नहीं बना, तो क्यों छोड़ने का इसको, कभी पैसा तो बनाया नहीं. इट इज दैट थिंग व्हिच कम्स इन. एंड in identifying a trend, there are 2 things. One is that you may have to wait, and second thing is मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि there is only one thing in your hand, कि आपको किस प्राइस पे माल लेना है, किस प्राइस पे आपको एंटर करना है. जो एंट्री लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नो वन नोज एनीथिंग कि कल साल में, 2 साल में, 4 साल में क्या हो जाएगा. ऑफ कोर्स यू विल रीड अ लॉट, यू विल डू अ लॉट ऑफ हाइपोथेसिस कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत हाइपोथेसिस होंगे आपके सारे के सारे होंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर ओनली वन थिंग व्हिच मैटर्स इज कि किस भाव पे लेना है, जहां पे रिस्क कम हो, कि पैसा जाएगा नहीं आपका, और अगर रिटर्न बना तो रिटर्न मल्टीप्लाई हो सकता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो यू लुक एट माइक्रोसॉफ्ट उस समय जिस 2001 में उसका मार्केट कैप इट वाज प्राइस अर्निंग ऑफ 53 टाइम्स, उस भाव से लेके वो 2015-16 तक उसका मार्केट कैप उतना ही था. 10 साल माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक नहीं मिला. नाउ देयर इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सो अगर आपने तब लिया होता यू वर बेटर, और अगर आपने उस टाइम पे लिया होता जब अर्निंग्स आ गई तो उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 20 का हो गया. एंड दिस इज व्हाट एस नरेन सर हैज टॉट मी. अगेन huge fan of Prashant sir and Naren sir. The beauty of long up cycles is that people forget rationality. This we have seen happening in 2005 to 8 during the real estate cycle. We have seen NBFCs between 2011 to 18. We have seen many cycles जहाँ पे जब ऊपर जा रहा होता है तो rationality भूल जाते हैं. And the beauty of long down cycle is that people forget growth. कि ग्रोथ तो आता ही नहीं है, ग्रोथ तो आएगा नहीं. एंड मैं हमेशा मानता हूं अगेन बार कि जो भाव होता है ना, भाव उसमें सब कुछ उसी में आ जाता है. सो व्हेन यू आर गेटिंग हिंडाल्को लाइक कंपनी एट 0.3 बुक वैल्यू, सेल काइंड ऑफ अ कंपनी एट 0.25 0.2 बुक वैल्यू, तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव जो चीजें हैं, assumption है, सब कुछ उस भाव में आ चुके हैं. हाँ, आप उससे बोल सकते हो कि बॉस वरिंदर ये 10% नीचे से हो सकता है, नीचे हो सकता है. बट व्हेन यू सी अक्रॉस थिंग्स, आई थिंक डाउन साइकिल में लोग भूल ही जाते हैं कि ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता. एंड अगेन आई सेड साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो अगर 25 साल पीछे जाओ तो आप देखेंगे कि 1996-2000 में जब टेक्नोलॉजी मीडिया चला था, आयुष भाई, आपके पास इन्फोसिस होता या सत्यम होता, HFCL होता या DSQ होता या कुछ भी कचरा होता, आपका पैसा बना था अगर आपने सही टाइम पे एंट्री किया था. दैट इज से कि एंट्री प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मगर 2003-8 में जब हवा भी बिकती थी तो उस समय आपको याद होगा कि कितना, आई डोंट नो, अभी तो नाम भी कुछ याद नहीं है, कौन कौन सी कंपनीज, रियल एस्टेट की कंपनीज कितनी होती थी, राइट? अभी वो आधी तो है ही नहीं है.
और आई थिंक आई वाज अब एक बार हम देख रहे थे कि कुछ यूनिटेक का मार्केट कैप 100 करोड़ से 1 लाख करोड़ हो गया था उस टाइम पे। Yes. 100 करोड़ से 1 लाख करोड़ हो गया था। So you touched any infra, commodities, real estate company, maybe your money just multiplied. 9 to 14 it was consumption, farm, FMCG. 15 से 19 auto financials. maybe there are these phases, there are these themes, you know. और समझदार लोग बोलते हैं कि जो जब साइकिल चलता है तो साइकिल रन्स फॉर 5 to 6 years. इट इज नॉट कि हाँ भी वो खत्म हो जाता है। जब केमिकल चालू हुआ था तो केमिकल सेक्टर से इट इज नॉट, इट इज वेन्ड ऑफ। So a lot of times people come in the sector 20% 30% बकता है, चले जाते हैं कि भैया कभी होगा नहीं। You know, that never happens. The very strong cycles, they don't die immediately. You know, it takes time. बाकी perk up होगा, then consolidate होगा, then numbers आएंगे, then institutions आएंगे। सबसे पहले रिटेल आ जाते हैं, institutions only come जब earnings आ जाती हैं। So whether that happens to say sugar sector जो मैं बोलता रहता हूँ, earnings will tell, you know, कि earnings की वो longevity of the cycle कितना है। So if you get into a cycle early and the earnings come, institutions follow, then the longevity becomes very high and then you make a lot of money. 2021 onwards, there are few sectors we have been studying again and again where we see कि हाँ भी पैसा बन सकता है अपना खूब सारा। I think one data point which I think हमें देखना चाहिए बार-बार is that weightage in Nifty. मतलब हम जब याद होगा आपको पिछली बार वो मधु सर आए थे और सब फार्मा वाले आए थे, they told a very good point कि हेल्थ केयर में एक टाइम पे जो वेटेज है कम होकर 2% चला गया था निफ्टी का वेटेज हेल्थ केयर में, you know, 2% which was the lowest ever what they have seen. You know, आज we are back to some 3.5% in March. इन यूटिलिटीज आप सोचिए एक टाइम पे मतलब 13.3% होती थी वेटेज निफ्टी में 2008 में, आज के टाइम में 2% ही है। कैप गुड्स 7.5% होता था 2008 में, आज के टाइम पे अभी भी 2.5% है। बैंक्स आर ऑलवेज वेरी फैंसी, सो बैंक्स 4.5%, अभी 24% है। So you have to see how Nifty composition has changed for a lot of sectors. Like 2004 में metals 8% होते थे, आज भी 2.5% है। So a lot of people are underweight these sectors. You take metals, you take sugar. Sugar में बलरामपुर के अलावा किसी के पास माल ही नहीं है। There is no institution in anyone. Telecom, technology 14.5% went to 9%, back to 16.5%. So you will see that there are sectors which are still under-owned, and under-owned for what reason? क्योंकि जब वो परफॉर्म करने लगते हैं तो everyone wants to just chase because we all are human beings. सबको एक ही बार में लेना होता है माल। And of course, you know, you can do a lot of permutation combinations in terms to understand कि सेक्टर का बहुत करंट का पी कितना चल रहा है, 10 साल का एवरेज कितना था, प्रीमियम चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, रिलेटिव टू निफ्टी पी किस तरीके से है, प्राइस टू बुक किस तरीके से है, डिस्काउंट है कि नहीं है। So these data points will just give you a start. Sir, this is the website on which this data is accessible? नहीं सर, ये नहीं है, ये हम निकालते रहते सारा कुछ। आई विल टेल यू अ गुड वेबसाइट। सो आई फाइंड दिस वेबसाइट, मैंने आपके लिए रखा था, मुझे पता था आपका क्वेश्चन पक्का आएगा सर ये। ठीक है ना, बिकॉज आई नो यू। तो ये niftyperatio.com करके है वेबसाइट, आई थिंक यू हैव टू सब्सक्राइब टू इट। ओके, तो मैं मेटल्स का निकालता हूँ। सो एक सेकेंड, these are things which you keep on reading. जैसे metals का मैं निकालता हूँ, इसमें मतलब इसमें सब sectors का है। I think this is the data which they have taken from NSE. NSE also has the data, but they have compiled it beautifully. So you can see, Ayush bhai, I'm talking about metal sector. ठीक है? So metal का price to book ratio for the last 15 years monthly basis. आप दिख रहे हैं ना आपको? Yeah. तो उस टाइम पे 2007 में तो प्राइस टू बुक वो मेटल सेक्टर वेंट टू ऑलमोस्ट 6 times। Yeah. और आप बीच में देखेंगे जब बोलते थे लोग लेने का टाइम आएगा गया, तो एक टाइम पे पूरा सेक्टर 0.7 बुक वैल्यू पे मिल रहा था। एंड इंडिविजुअल कंपनीज यू वर गेटिंग फॉर व्हाट 0.3 बुक वैल्यू, बिकॉज़ सेल, हिंडाल्को एंड ऑल, यू नो, यू लुक एट व्हाट and this chart is also for the metal sector, specifically the below हाँ chart. जी ये भी। So they have done auto, banks, FMCG, IT, pharma, media, commodities, energy, realty, Nifty का भी सारा कुछ है। Got it. हाँ, okay. So see, I'm saying these are starting points, right? These are starting points way to understand. So I don't know, I'll show you one more space. So जब मैं बोलता हूँ सेक्टर चलता है ना सर, तो सेक्टर एक स्टॉक नहीं चलता,
एज आई सेड, अगर आपने थीम से ही पकड़ लिया ना, तो अगेन यू कीप ऑन डेलिब्रेटिंग अपॉन कि आपका कम बना, मेरा ज्यादा बना पैसा, वो अलग बात है। तो टाटा स्टील भी चला, हिंडाल्को भी चला, जेएसडब्ल्यू स्टील भी चला, सेल भी चला, बट बहुत लोग कम समझदार होते हैं आयुष भाई की जैसे, जिनका गोदावरी 8 गुना हुआ, यू नो। सो सब चलता है, आपका हमारा कम बनेगा, आयुष भाई का ज्यादा बनेगा, विच इज फाइन, बट आई एम सेइंग कि ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली लोकल, global also, you know, global also you will see the theme plays out. Sugar, you know, again I'm saying कि आप, it's Balrampur, Dhampur, Dalmia, Triveni, Dwarikesh. If you see global hotel and resort industry, हम आज बात करते हैं इंडिया में हमारे टीवी वाले की इंडियन होटल EH, but please look at, you know, Marriott, Hilton, Intercontinental, Accor, Travel and Leisure Company, how they have moved in the last 1 year. Global airlines, again, I don't want to be fixated only about Indigo, but you can see the trend which is happening across the world. And of course, then there are various other ways कि अगर आपको इंडिविजुअल कंपनी से पैसा बनाना है, जो मैं नहीं, आयुष भाई आपको ज्यादा अच्छी तरह से बना सकते हैं, that you screen, do a lot of screening of ideas. But मैं इसमें एक ही चीज बोलूंगा, I have seen again screeners run very fashionably, you know, कि ट्विटर पे डाल देते हैं तो इसलिए हम एक स्क्रीन रन कर देते हैं. The only benefit of screening is कि अगर आप उसको frequently यूज करते हो, not only कि जब वो स्टॉक मार्केट गिर गया तब मैं लेता हूं, अगर आप उसको बार बार मेरे ख्याल में 1 हफ्ते बाद यूज करते हो, then you will come to know about various ideas or various stocks which keeps on continuing in various screens जो आपने लगा के रखी हैं. Then you will understand कि बॉस इसका नाम बार बार आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है. So आपके पास 5-6 मैट्रिक्स होंगे जिसपे आप स्क्रीन करते हो. So I'll try and show one thing, you know, if possible. So ये हमारा छोटा सा डेटाबेस है, you know. So like हमने जो अपने लिए वैल्यूएशन स्क्रीनर बनाया हुआ है, you know, और we want to run this at least once or 2 or 3 days so that we identify. जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं कि स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, आइडियाज होते नहीं है, मार्केट इतना भाग चुका है, इतना महंगा हो चुका है, ऑल दोस थिंग्स, राइट. मैं बोलता हूँ ये बहुत 5000 कंपनीज है इंडिया में, आपके पोर्टफोलियो 20-25 कंपनीज चाहिए. मगर अगर आप 20-25 कंपनी ढूंढ नहीं सकते हो, या तो आप टीवी ज्यादा देख रहे हो या बहुत लेजी हो. मगर आपको आप मुझे बोलो आयुष भाई, मैं बोलता हूँ 500 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप चाहिए, 10,000 करोड़ से कम मार्केट कैप चाहिए, बिटवीन 500 करोड़ टू 10,000 करोड़. यू नो, आरओसी 5% से ऊंचा होना चाहिए, और कितना भी आरओसी हो. देन ऑफ कोर्स प्राइस अर्निंग रेशियो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, लॉस मेकिंग ना हो, और 20 से कम होना चाहिए टीटीएमपी. इंडिया में 250 कंपनीज अभी भी है, 242 अभी भी है, ठीक है. फिर आप बोलो वरिंदर, व्हाटएवर, मैं आई एम सेइंग आप कुछ भी लगा लो, डेट इक्विटी लगा लो, 1 से कम होना चाहिए, ठीक है. आप बोलो चलो ठीक है कि कम से कम 100 करोड़ का ग्रोथ होनी चाहिए 15%, लेट्स पुट 15%. नहीं, आप बोलो कि मैं बोलता हूँ कि चलो छोटा कंपनी में नहीं जाना, तो पैट जो है एवरेज 3 साल का 100 करोड़ होना चाहिए. तो हमने बोला 10,000 करोड़ से कम होना चाहिए, और 100 करोड़ प्रॉफिट कमाती है वो कंपनी कम से कम. इवन 72 कंपनीज आती हैं. So now you sort via price earning. Now you saw कि आपको किसमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना. So I'm taking 100 करोड़ से प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम. You are much smarter than me कि आपको फिर क्या करना है. I'm saying you will get a lot of names still in the market. It is not कि वो नाम नहीं मिलेंगे. तो screener is a very 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 useful tool if you use frequently. तो एक चीज हम और जो करते हैं, जब भी कंपनी की बात करते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो, यू नो, वी टॉक अबाउट, आई टॉक अबाउट अ कंपनी बिकॉज़ मैंने उसका ट्वीट डाला था 2 दिन पहले, एंड वी हैव एडवोकेटेड टू क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग. आई जस्ट शो यू कि जैसे डीसीएम श्रीराम है, ठीक है ना, बिकॉज ट्वीट डाला हुआ, इट इज डिस्क्लोज्ड एंड एवरीथिंग, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ टॉकिंग अबाउट द कंपनी, बट डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, बड़े वाला, छोटे वाला नहीं, क्योंकि छोटे वाला भी बहुत लोग प्यार करने लगे हैं अभी उससे. So this is a tool which tells you about last 20 years का डेटा एक साथ में. This will tell you कि this is a commodity company, but you see the way the commodity company has done over last 20 years. So whenever any idea comes to you, it is very important कि आप 1 साल का मत देखिए, और आप प्लीज शुरू होने से पहले पीई की, प्राइस अर्निंग रेशियो की बात मत कीजिए. You have to focus on the execution of the company, which is the most important thing.
So even in last 20 years, this company has gone one way, barring you can see कि चलो ये 4 साल नीचे थे, then you have to go to the annual report and see क्या थे, but margins were still the highest during this period of 17%. So आप बोलोगे चलो इसको तो ठीक है, then you can check about what the balance sheet items. तो balance sheet items आप gross block देखो, उसका gross block कैसे रहा, क्योंकि इसने 1500 करोड़ से 4000 करोड़ का gross block किया लास्ट 5 साल में. और कहां से लिया, then you can see कि बॉस उसका डेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा. Basically, by these pictures, we can get a better trend analysis. Ki over the years, the company has been growing regularly on a sale basis. Company has been regularly investing into fixed assets. So basically, this is what is a pictorial gives you an insight ki what is happening in the company. मैं वही बोला ना कि even he is multi 1500 करोड़ से 4000 करोड़ ग्रॉस ब्लॉक किया, बट इसने डेट कम किया. So this is a starting point where people should go in and try to read the annual report and understand ki where they are investing money, where Yes. this expansion is happening, Yes. when will it start, when will the benefits come in. So that is where the research process starts basically. Yes. So a commodity company is having the cash conversion cycle 2 महीने का पूरा वैसा है उसका. कोई खराब नहीं, आराम से चल रहा है सारे का सारा. Plus debt equity ratio has come down in a major way over the years. So I'm saying there are many ways. आपको पढ़ना है बस. There is no shortcut. You know कि पढ़ना है. I don't know whether we were working on one more thing. If I can, just show you. So जैसे real estate sector की बात करता हूँ मैं, क्योंकि उस पे हमारा काम चल रहा है. I'll just show you if possible. हमने किया था एक चीज आजकल में किया था, which gives you sector view also. यहाँ तो हम सिर्फ स्टॉक का बात कर रहे हैं, राइट, कि XYZ स्टॉक उठा लो, उसका बात करते हैं. आई टेल यू कि आज की डेट में आई डोंट नो अभी जोमेटो का मार्केट कैप कितना होगा कितना नहीं होगा, बट अगर मैं रियल एस्टेट का देखूं इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, द मार्केट कैप ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन 2000, नाउ दिस इज सेक्टर डेटा, was 2.5 lakh crores in 2008. It is almost same 3 लाख करोड़ अभी भी. Like 12-13 साल में ये वहीं का वही है. I want to see कि बॉस अगेन क्योंकि डेट सबसे बड़ा इश्यू होता है, तो डेट, ठीक है आयुष भाई, अगेन सेक्टर का डेट, the highest debt of the entire sector was 1.37 lakh crore. 1,37,000 crore, which is now down to 68,000 crore. And this, अभी इसमें of course there are new players who have come in, old have gone out, तो उनका तो डेट ले ही नहीं रहा हूं मैं, यूनिटेक फिनिटेक का तो ले नहीं रहा हूं ना. तो आई एम सेइंग कि आपको अगर इस तरीके से भी थोड़ा सेक्टर का पर्सपेक्टिव लेंगे ना, कि आज इंडिया में 3 लाख करोड़ में आपको पूरे का पूरा सेक्टर मिल रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है. बिकॉज अभी तक तो ये सेक्टर हिला ही नहीं है. हम लोग ऑल टाइम बोलते हैं, कुछ वो ही नहीं है. Plus on the ground one can see कि so many changes have been going on, wherein so many players have vanished, and only the reputable good players are left now. हाँ, वो है, बट वही बोलता कि ये एक्चुअली दिस इज हैपेंड फॉर ऑल द सेक्टर्स. लास्ट एटलीस्ट 7-8 साल में इंडिया में जितने ऑपरेशंस देखे हैं हमने, रेरा, जेएसए, डिमॉन, ब्ला एनबीएफसी क्राइसिस, सब कुछ, उसमें जो सब वीकेंड थे वो चले गए हैं. सो again I'll touch on that thing later. That's a very important point what you mentioned. So the point is that you can choose sectors. जैसे आज डिलीवरी का आईपीओ आएगा, डिलीवरी आईपीओ विल कम at least if not more than 20,000 करोड़ कम से कम आएगा. आज आपको इंडिया में सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी पुट टुगेदर टीसीए के अलावा 10,000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है. See, there is a huge difference in terms of how the private equity and the listed entities are valued, and there you get a lot of arbitrage in terms to make money. तो आप बात बोल रहे थे ना आयुष भाई, just to touch on the topic, that one thing बहुत ज्ञानी आदमी ने मुझे समझाया था कि read supply side, study the supply side. डिमांड साइड तेरे मेरे हाथ में नहीं है. टेलीकॉम में क्या हुआ था 10, 12, 15 साल पहले, देवर एटलीस्ट 15-20 प्लेयर्स थे. जब सप्लाई साइड पे ही अपने पता कि 3 लोग रह गए हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर क्राइसिस हैपेंड. नाउ व्हेनेवर द डिमांड कम्स, बिकॉज व्हेनेवर द डिमांड कम्स, थैंक्स टू कोविड फॉर देम इट केम,
तो सारे का सारा उनको वॉल्यूम भी मिला और प्राइसिंग भी मिला. Agreed. So supply side is very very important to track rather than demand side. हम लोग बार बार ये सोचते रहते हैं ग्रोथ कहां से आएगा, ग्रोथ कहां से आएगा, ग्रोथ कहां से आएगा, बट हम लोग ये नहीं सोचते कि सप्लाई साइड ज्यादा जरूरी है. कमोडिटीज में ये हुआ, शुगर में ये हो रहा है, यू नो वेरी अ लॉट ऑफ सेक्टर्स विल सी दिस. आज रियल एस्टेट में जो 12 साल पहले जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स थे वो कम हो गए, मेरे ख्याल में 20% मुश्किल से बचे हैं. Agreed. And we should not worry about demand because demand के लिए there are many things which government is doing. Interest rate 6% पे है, तो again आपका पैसा उतना कभी खोएंगे नहीं आप if you are with a reputed person. और उन्होंने पूरे का पूरा डेट साफ कर दिया. I can show you individual companies का you see कि how balance sheets have been repaired for a lot of companies. SAIL, Hindalco, Tisco, even DLF. आप कोई भी हाईली लेवरेज कंपनी जो हम सोचते थे 7-8 साल पहले, उनका किस तरीके से एंटायर इंडिया का जो डेट कम हुआ है. सो सप्लाई साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक. And I think like you also do something कि I think इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे around the ground checks that you do, because this has to tally with what is happening in the industry. मतलब when you like today if you go and talk to people in real estate, you will realize that good players are doing well. They are doing high all-time high sales. They are selling well. So I think when that story matches with the numbers of the listed company, that is where you get confidence and you can do well. नहीं, that is what I said ना पहली स्लाइड में कि it's investment has to be dynamic. You can't be कि मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, कंप्यूटर पे बैठा हूँ, डेटा निकाल रहा हूँ, काम हो जाएगा. You know, आपको इंडस्ट्री चेक्स करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे. जो बोलते हैं ना कि वैल्यू के चक्कर में मालूम चला कि हम बैठे रहे, तो आपको मालूम भी चलना चाहिए कि ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा. जब मेटल में हम लोग काम करना चालू किए थे तो जिसकी बात करते थे बोलते बॉस इन्वेंट्री नहीं है यार, माल ही नहीं है. You were seeing whenever you're talking to any company, they were saying माल ही नहीं है बॉस. हो क्या गया, वो खुद पागल थे. So those checks are very very important. But again, if of course everyone is a smart investor, I don't discriminate कि कोई retail investor है, कोई HNI investor है, कुछ है. A smart investor should always know these things. आपने कोई भी कंपनी लेते हो तो आपको ये 10 चीजें आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी में लेते हो. नाम क्या है कंपनी का, कितना मार्केट कैप है, कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, उसका लीडरशिप है कि नहीं उस कंपनी में. मतलब कि अगर आप सोचो कि भैया मैं कोई कंपनी ले रहा हूं तो वो इंडस्ट्री में पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है. मैनेजमेंट को कितना साल हो गया काम करते हुए, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया कि अभी चालू की है. वो कंपनी उस धंधे में, जिस धंधे में आपको विश्वास है कि बड़ा बन सकता है, वो कितने टाइम में उस धंधे में काम कर रहे हैं. प्रमोटर का स्टेक, प्लेज, डेट इक्विटी, प्राइस अर्निंग आपको कहां से मिले, कैश फ्लोज, डिविडेंड पॉलिसी. सो आपका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या आपको इन्वेस्ट करना है. अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप प्लीज अगर मैं 10 स्टॉक से 15 स्टॉक से ये 10 चीजें लिख के रखो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन होप या किसी के इधर उधर बोलने के लिए. आई थिंक विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग. और जस्ट टू कंक्लूड फ्रॉम माय स्लाइड आयुष भाई कि नेवर एवर रिग्रेट इन द स्टॉक मार्केट. आई कैन टेल यू कि सबको लगता है कि मुझे कितनी बार लगता है कि जो आयुष भाई ने स्टॉक लिया वो मैंने क्यों नहीं लिया. आयुष भाई लेने से पहले मुझे बता दें कि हाँ ये स्टॉक ले रहे हैं. यू नो ये कभी होता नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है. एवरीवन विल हैव डिफरेंट विनर्स. मैं आपको बता सकता हूं कि ये द नेम्स व्हिच आई पुट, ये सब बहुत अच्छे दोस्त हैं. यू नो राधा किशन जी, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी, निमेश शाह, ये 4 तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सालों से. फिर भी इनके जो विनर्स थे बिल्कुल अलग थे. राकेश झुनझुनवाला ने पैसा बनाया लुपिन और टाइटन में, राधा किशन जी ने HDFC बैंक, डीमार्ट में, रमेश दमानी जी मैकडोवेल में, निमेश भाई कमोडिटीज में, रामदेव जी हीरो होंडा, मधु डीवीज एंड फार्मा, सुनील ऑफ कोर्स मेनी मिड कैप्स बट मैस्टेक, सारेगामा, JSP जो मुझे याद आता है, अनिल कुमार गोयल हमारे शुगर और एग्री, मुकुल अग्रवाल इंडिया मार्ट इंटेलेक्ट. आई फॉरगॉट टू ऐड अपना Nikhil Gora, who's only consumer. Yeah. You know, so I'm just saying that everyone will have different portfolios. Everyone has a different style. So never regret कि यार उसने लिया तो मैंने क्यों नहीं लिया. You know, you have to make your own style. If you don't make your own style, whichever way it is, that is very very important. मतलब अच्छे से अच्छे भी एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते हैं. So I always say कि risk, मतलब ending thoughts, risk comes from not knowing what you're doing. आप trading करो, आप investing करो, आप जो करना आपको करो.
बट आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। इशू कहाँ पे होता है, जब वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बन जाता है और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बन जाता है। स्टॉक लिया हो ट्रेडिंग के लिए, मालूम चला 5% नीचे आया, 10% नीचे आया, तो फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन गया हो। और इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हो और स्टॉक को ट्रेडिंग बना दिया, 10% में निकल गए। सो वट एवर यू डू कि इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रेडिंग तो स्टॉप लॉस कितना है और मुझे कितना खाना है। अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाई एम बाइंग और कितने टाइम के लिए खरीद रहा हूं। So there are very few people who can distinguish this. Honestly, in my career, I have seen RKD sir and Rakesh Jhunjhunwala. These are two people who has that mindset of investing or trading को साथ में लेके जाके भी कर सकते हैं. Otherwise, it's very difficult for a lot of people to mentally handle that thing. Investment is very personal. It's like playing with the emotions. It's very, very personal. So whatever you buy or sell or whatever you do, it has to go with your temperament. So ऐसा नहीं होता कि सबको जमेगा नहीं जमेगा. It's very, very personal subject. So big money was made and will be made only if your investment is backed with high conviction. I know बहुत लोग बोलते हैं, but it's just like just बोलते रहे कि honesty is a good policy. वो इतना ही छोटा शब्द है लेकिन सबसे बड़ी चीज है. ये भी वैसा ही है. मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना कि पतला होने के लिए जिम जाना पड़ता है, तो वो जाना पड़ता ही है. कम खाना पड़ता है, कम खाना पड़ता ही है. सो इट्स लाइक दैट थिंग कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी. सो दैट्स इट मेरी तरफ से. This was amazing, very very nice and relevant presentation, I would say, for our audience, because हमारे group में जितने भी हैं, lot of them are entrepreneurs and investors who are trying to learn investing, who have had few years in investing. So this kind of insights bring ideas, and they also tell you the rules कि भाई ये ज़रूरी है. These 2-3 things are very important if you're going into investing in a big way. So we have jotted down few questions and I'd like to quickly cover them, and then we'll open it to audience to make it interactive. So I think one question that many of us would love to know is, when you used to do a series like Did You Know, and many often you are famous for bringing out ideas which are unknown, which are undiscovered, which are very cheap. How do you come across? What is the starting point? How do you land upon those ideas? इस बार आपने ओमकारा में Steel, Sugar, Isjek, Saregama, Solara, all of them have come at a very, very early level when no one used to even talk about them. So what are usually your starting points? So Ayush bhai, it's always data. मैं आपको honestly I'm telling you, no one realizes it कि if you play with data ना, if you play with the screens जो भी आप बना सको, how much information you get. मैं आपको अभी भी बोलता हूँ ना, आप लगा लो कि लास्ट 1 साल में सबसे ज्यादा मार्केट कैप किस कंपनीज का बढ़ा. I'm just saying you just put random things in your mind and say चलो आज निकालते हैं कि लास्ट 2 साल में सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका बढ़ा, एंड उसका सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा. देन यू विल सी कि कुछ कचरा कंपनीज आएंगी, कुछ अच्छी कंपनीज आएंगी. आप बोलो वरिंदर, लास्ट 5 साल में यार सबसे ज्यादा ग्रॉस ब्लॉक किसने ऐड किया और डेट कम किया, आपको वो आएगा. और उसके साथ साथ बोलो चलो आरओसी भी साथ में देखते हैं. सो आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज डेटा. या तो रैंडमली आपको कोई ना कोई दोस्त आप जैसा बता दे कि वरिंदर इस कंपनी को ऊपर इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, बट आई एम सेइंग the data is so powerful now. I can show you on our valuation sheet or going to, of course, yourscreener.com, that you put as much as screeners, do it frequently. आपको अच्छा कंपनी भी मिलेगा, बुरा कंपनी भी मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी, बड़े से बड़े लोग यही देखते हैं. आप कभी भी किसी का ब्लॉक डील होता है तो फोन पे बात करोगे, सर क्यों लिया, अरे बोलता है 20% का आरओसी 5 टाइम पे मिलता है, क्यों नहीं लेगा. तो मैं बोलता अगर यार यही टूल यही सोचते हैं कि आरओसी होना चाहिए और पी होना चाहिए, तो मैं उस लिस्ट को क्यों नहीं अपने पास रखता हूँ. यहाँ पर I'm saying, so once I was talking to someone, he said, वरिंदर बता इंडिया में 100 करोड़ प्रॉफिट करने वाली कितनी कंपनीज है. तो मैं बोला यार ये अच्छा है, 5000 कंपनीज है, 5000 कंपनीज में इंडिया में 350 कंपनीज मुश्किल से है. तो बोले सबसे पहले तेरा वो दैट इज अ फोकस, अभी इसमें से निकाल. अभी कोई बोलता है, मैं आई एम टेलिंग यू कि तू उन्हीं कंपनी में पैसा डाला कर जिनके पास प्रमोटर के पास 75% माल हो, क्योंकि फ्लोट होता नहीं है. तो सब बड़े लोगों को वो चलाएंगे स्टॉक को, तो आप कर लो. Because there are so many permutation combinations which you can use again and again. When you get the data, you will understand कि boss ये क्या हो रहा है. So when you run a screen, you get 70-80 odd names. How do you
मतलब अब सबको तो आप नहीं पढ़ सकते, सो उसमें भी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक टू शेयर कि यू फोकस ऑन, कि आपको ऐसा क्या स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है जिससे आप कहते हैं यस दिस इज समथिंग वेयर आई वांट टू डीप डाइव? So 70-80 कंपनी से पहले तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे पता कि कौन सा नहीं लिखना मुझे। फर्स्ट इज रिजेक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन सिलेक्शन, कि ये नहीं जानेगा, पता अपने को नहीं जानेगा। देन ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट इज कि कौन से सेक्टर में जानेगा, कि अगर अच्छा भी लग रहा है तो कौन सा सेक्टर में जाने का, डज इट गेट इनटू माय एरिया वेयर आई वांट टू गो, आईटी में जाने का, एग्री में जाने का, ऑटो में जाने का, किस में जाने का। लाइक अगर आज आप स्क्रीनर रन करोगे ना आयुष भाई, तो आपको आज की डेट में भी आपको कमोडिटीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, पेपर कंपनीज आज भी आपको 6-7 पी से कम मिलेंगी सारी की सारी। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि वेदर ऑटो में जाना है, पेपर में जाना है, you know which area you want to go, or whether you want to pay a higher price and going to mid cap technology companies. So you have to think about those things कि वहां पे जाने का। then you have to see execution हो रहा है कि नहीं हो रहा। then of course टच वुड हमारा टीम अच्छा है तो हम लोग बैठते हैं, गप्पे मारते हैं कि भैया बताओ ये 5 नाम निकले हैं, इनमें से किसी में दम लगता है, लेट्स डू अ लेवल 1 चेक कि वेदर आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। so those things are very important. I'm telling you आयुष भाई, it is as mandatory as eating food। मतलब होता है ना कि आपको ये डेटा बार बार सी, एवरीवन विल सी 3:30 बजे तक वो स्क्रीन देखेंगे, विच इज अ गुड थिंग, लवली थिंग। बट अगर आप 10 मिनट भी रोज के स्क्रीनर रन कर लो, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट सो मेनी आइडियाज which are there in front of you, but you are waiting to buy them because कोई गोरा या इंडियन फंड मैनेजर लेके जाएगा, फिर आप उस पर चढ़ोगे। तो सामने दिख रहा है आपको, फिर भी लेते नहीं हो। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समवन्स ऑथेंटिकेशन कि किसी ने ब्लॉक डील में माल लिया तो मैं लूंगा। बट also to just extend onto this, like जैसे आपने स्टील या शुगर बहुत पहले उठा लिया, आपने पहले ढूंढा कि नहीं यहाँ पे वैल्यू बट 3 साल से थी, these were cheap and they kept getting cheaper for last 3, 4, 5 years. So when do you say कि नहीं, I'm not onto a wrong idea, I'm not onto a wrong sector, and yes this has something going for it that this will get re-rated this time or things will change? अच्छी दो चीजें इसमें। मैं अगेन सबसे पहला कर्तव्य अपना क्या होता है कि पैसा खोलेगा नहीं। So you have to be very careful at what price are you entering. Are you entering at a price where you can lose 50% of your money, or you are entering at a price where you think कि आपको 3-6 महीने वेट करना पड़ेगा? So that price point is very important for me to enter. I'm not saying कि मुझे सबसे नीचे मिलेगा, but I'm saying फिर भी अपने को पता होना चाहिए। I don't want to be the guy who is chasing things because TV वाला बोल रहा है, वैसा नहीं करना चाहता। So for us when we think about, and of course लगता है कि बहुत इतना सस्ता कंपनी है, ये है सारा कुछ वो है, लगता सबको है देख के, प्राइस देखोगे लगेगा, but then you have फोन घुमाओगे 10 लोगों को। आप जैसे आई सेड कि टचवुड हमारा बेनिफिट ये भी है कि हमारा कॉर्पोरेट कनेक्शन बहुत अच्छा है, लोग हैं, दोस्त हैं आप जैसे बहुत अच्छे हैं, सबको घुमाओगे भैया क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। जो कॉर्पोरेट्स में अच्छे लोग हैं जिनसे हम समझते रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि सर कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ इंडस्ट्री वालों ने निकाला कि नहीं निकाला, लास्ट गैजेट क्या कौन सा आया था, इसमें एथेनॉल पॉलिसी क्या थी, आप लोग कुछ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो इट्स अ टोटल इंडस्ट्री। अगर किसी को कुछ काम करना है तो उसका बॉयलर भी लगेगा, उसका फर्नेस भी लगेगा, तो बॉयलर वाले को फोन करो, फर्नेस वाले को फोन करो कि सर क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, धंधा कुछ आ नहीं रहा था, ये पैसा पहले दे रहे हैं कि बाद में दे रहे हैं। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर किसी के पास डिमांड आने लग जाएगी तो आपको भी जल्दी होगी, मुझे भी जल्दी होगी, जल्दी से प्लान डालो, पैसा पहले दो। सो दीज इंडस्ट्री चेक्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल। In your presentation, you spoke about कि theme is something which is very, very important, and you beautifully showed how at different periods of time there have been different themes. So in today's time, what are the themes wherein you believe कि market has not caught the fancy and still it is something reasonable and you see a good tailwind for next few years? So one very, very big structural theme, honestly, what we are betting is green energy. Okay. It's a structural theme. It is not कि discovered नहीं है. But I still think कि हाँ भी the opportunity size is very, very huge and the companies are very, very small. अभी भी लोग उसको PE पे देखते हैं. We don't look at the kind of opportunity which can come. The order book of some of these companies can double, triple in the next 2 to 3 years. The opportunity size is huge. And second thing, I think energy, you mean something like solar, renewable? कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अच्छा लगता है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में KPIT makes the automation for global electrical vehicles. If you want to go for, see there are many things. अगर आपको सोलर में जाने का तो बोरोसिल है,
अगर आपको यू नो 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक में जाने का तो एक ग्रीव्स कॉटन है, तो आपको अलग अलग थीम्स में है, प्राज है, देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच आर देयर. देन ऑफ कोर्स एंसिलरी प्लेयर्स है, जैसे अपार हुआ एंड ऑल हुआ, गुजरात फ्लोरो हुआ, दोस आर एंसिलरी प्लेयर्स. सो देयर इज अ बास्केट व्हिच इज देयर. नाउ यू कैन चूज व्हिच आर वे टू चूज. I think another big thing which can transform in the next 2 to 3 years, and I'm personally very bullish, is real estate and home building. Real estate and home building. You talk to any home building person, Ayush bhai, किसी प्लाईवुड वाले से बात करके देखिए, माल ही नहीं है आज, माल ही नहीं है बाकी, टू बी ऑनेस्ट. तो भाई कैपेसिटी लगाने के लिए वो बोलते हैं बॉस कैपेसिटी कितना लगाए कितना लगाए कितना लगाए, सो माल ही नहीं है किसी के पास. एंड रियल एस्टेट, आई थिंक रियल एस्टेट इज कुड बी अ वेरी वेरी बिग थिंग. इट्स बट रियल एस्टेट कांट बी शुगर की वो जल्दी से 2-3 गुना हो जाएगा, बट अगर वो होगा तो आई थिंक लास्ट 2-3 साल में these guys have done maximum what they can do. Like Oberoi, they have taken 4 biggest parcels in Bombay. So उसने वो सब खर्चा कर दिया है, उसके पास अभी इन्वेंटरी पड़ा है बस. So he has taken whatever he could do. Now he has to just monetize those things. I think now I like to ask a very popular question जो इस समय है कि markets have done so well. In last 1 year, markets have gone crazy. So many people that you speak to, they'll say, "Our market is crazy." Matlab, there's a serious disconnect between markets and economy and what we are seeing around us. While what are your thoughts or any comments that you like to add? Ayush bhai, you will be more intelligent to answer this question, but I'll try and just say this thing कि मेरा काम है 20-25 स्टॉक्स ढूंढना. मेरा काम नहीं है कि ये मार्केट मैक्रो और टीवी वालों से होता है ना कि हाँ भी इन सब चीजों में फंसना. यू डोंट बाय दोस कंपनीज ना. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट डू यू वांट कंपनी जिसका 25% आरओसी हो. यू वांट कंपनी जो 15 टाइम से कम मिले. यू वांट कंपनीज जो एटलीस्ट 15% ग्रो कर रही हो. यू वांट कंपनीज जिनका डेट इक्विटी 1 से कम हो. यू वांट कंपनी जिसका कैश फ्लो टू बीटा 50% से ऊपर हो. तो देयर आर कंपनीज व्हिच आर स्टिल देयर. If you tell me they're not, those companies are not there, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू वो है अभी भी. हाँ, आप बोलोगे मार्केट गिरेगा सब गिरेगा, वो तो कुछ भी हो सकता है, बट आई एम सेइंग कि इंडिया में क्या कि द बिगर ट्रेंड्स जो कमिंग अप वो बंद हो जाएंगे. आई डोंट थिंक सो. इशू क्या रहता है कि जिसने कोई चीज 100 रुपए पे देख ली और 150 हो जाएगा, 150 का भी हाथ नहीं डालेगा. सो इससे अच्छा मैं 100 पे ले लूं और 80 पे ऐड करूं rather than 150 पे चढ़ूं. I am very happy to buy at 100 and add at 80 rather than thinking कि हाँ भी मैं 150 पे उसको चेंज करूंगा. Because I don't take leverage. मेरा खुद का पैसा है, आराम से डालेंगे, कोई जल्दी नहीं है. And actually one very important thing, Ayush bhai, for retail investors is that retail investors have a very big advantage. Very very big advantage. आपको रोज लेने का जरूरत ही नहीं है. आप कभी 5 शेयर लो, कभी 10 शेयर लो, कभी 15 शेयर लो, कुछ भी करो. किसने बोला कि सब एवरीथिंग यू टू बाय एट वन डे? क्योंकि द बिग फंड्स हैव एन इशू कि उनको सब माल एक ही बार में डालना है. इफ यू गिव देम व्हाटएवर मनी, उनको एक ही दिन में उसी दिन का एनएवी डालना है. आपको अगर सपोज करो रिन्यूएबल अच्छा लगता है, रियल एस्टेट अच्छा लगता है, मेटल अच्छा लगता है या कुछ भी अच्छा लगता है, और आपने 5-10 का लिस्ट बना लिया, आप 2 शेयर आज लो, 10 शेयर कर लो, जो भी लो ना, धीरे धीरे मान लो. एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज व्हाट रिटेल इन्वेस्टर्स हैव, व्हिच अनफॉर्चुनेटली दे डोंट यूज. Any threats that you see in this market, or you feel that there are pockets where people used to be very careful to go around? No, I never understand financial services as a sector. That is one sector I never understood, and honestly, I have never invested apart from trading sometimes in PSU banks. I've never for me, I think they are not financial sectors, they are technology companies, and there's a lot of threat which is coming to that sector in terms of technology. Abhi there's a Paytm, Google and all these guys will come. So I don't understand that sector, so I'll stay away from that sector. I never invest in companies which are 60, 70, 80 times whatever way they are. So consumption is away, all those things. मुझे समझ में नहीं आता कि इतना पैसा क्यों दूं. I'll try and show you this thing if time permitted. So this is a good data. आपको भी कभी किसी का करना होता है ना, तो दिस इज वर्लपूल कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क. दिस इज 10 टाइम्स. आप देख रहे हो ना? हाँ, we can see it. ठीक है. और इसका डिविडेंड यील्ड तो अभी तो कम हो गया, पहले था. ठीक है, तो
10 टाइम पे मिलता है वर्लपूल कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का वाला जो कंपनी है उसका बाप है, और ये 80 टाइम पे हम वर्लपूल लेते हैं, और उसका डिविडेंड यील्ड एनीवेज 2.5% इसका ये है। बाकी यू नो, सो आपको पेरेंट कंपनी 10 टाइम पे मिलती है, और आपको इंडिया में हम लोग यू नो व्हाटएवर बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि चलो ठीक है ये कंपनी बहुत अच्छी है, बट किस भाव पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड see the outperformance of Whirlpool in the last 1 year of US. It is a 54%, and India is down 2.5%. You know, so the mantra of buying a great company at a reasonable valuation has always worked locally or globally. So consumption I'm away because of valuations. There are few sectors which I never understood, जैसे technology में ये जो आपका Zomato and all, Dixon नहीं समझ आता। You have talked, you emphasized on like averaging up and not averaging down. So in your experience, if you want, you can give example कि how could you average up into a stock? मतलब ऐसा क्या आपको insight मिलता है कि not only the price, I think price is one factor. मतलब जब evolution of a company होता है, how does one ride that company over a period of time? Because I think बहुत बड़ा एक mental block होता है कि किसी ने अगर 100 पे खरीदा होता है, वो बहुत बड़ा challenge find करता है उसको 150-200 पे खरीदने में. How have you been able to evolve? हमने सेल लिया 40-45 पे, OFS पे भी लिया, 100 पे भी लिया, अभी भी ले रहे हैं। Because if you calculate any insights that आपको जब उस समय क्या ऐसा लगता था कि नहीं मेरे को अभी भी लेना चाहिए despite buying it so low? No, but if you calculate the numbers again, the bigger thesis that the supply side is shrinking and the commodity cycle is here to stay. That is a bigger thesis. Okay. कहीं ना कहीं एक high level conviction होता है wherein you believe कि this is something that you feel there is a value and it is getting unlocked. And you believe it is happening. So to be honest, it's not that I know everything. I think you have to again read a lot of global journals which tells you, educate you again and again that how is the supply side of commodities, especially metal, steel, aluminum, is behaving in global markets. Okay. Second, you have to know right people who have mastered this sector space for last 10-20 years. So you have to understand those things, and उनकी conviction से और आपके खुद के पढ़ने से, कॉर्पोरेट कनेक्शन से आपको अगर ये मालूम चल जाए कि बॉस पहले तो आपका जो ब्रॉडर थीसिस है, बड़ा थीसिस है कि ये कमोडिटी साइकिल कहीं दूर नहीं जाने वाला, ये यहीं पे है, स्टील साइकिल कहीं नहीं जाने वाला, लेट इट कंसोलिडेट। आज भी मुझे आयुष भाई, व्हेन वी कैलकुलेटेड नंबर्स, सेल, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल बिकॉज अगेन मैंने बोला हुआ है, वो आज भी 3 टाइम ईवी बेटा पे मिलता है मुझे, ठीक है। नाउ यू से कि बॉस वो स्टॉक 40 का 120 हो गया, व्हाटएवर हो गया, तो मैं बोलूंगा हो गया, बट उसके साथ नंबर भी आए। It's not the bigger problem is everyone says कि भाव बढ़ गया, अरे मैं बोलता नंबर भी तो आए, कंपनी उतना ग्रो कर गई, हाँ, तो नंबर तो आए, या तो हो you should be worried कि स्टॉक बढ़ गया पर नंबर नहीं है, जाने के मुद्दे हो। Yes. So नंबर भी तो आए। So now you say कि 3 टाइम पे मिल रहा है, 3 टाइम पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। माई छोटा सा सेंस है कि बॉस खूंगा तो खूंगा 10-20%, पर आएगा तो डबल भी हो सकता है यहाँ से, तो माई रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल। सो शुड आई ऐड और शुड आई थिंक अबाउट एडिंग से Zomato, जो मुझे समझते ही नहीं है। So I will be into my home which is small enough but more comfortable. So now when you talk to the management, hear the con calls कि what they said they are delivering, उन्होंने डेट के बारे में जो बोला वो डिलीवर किया, कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में डिलीवर किया सब कुछ, साइकिल चल रहा है, आज भी चल रहा है। ये टाटा स्टील कॉन कॉल सुन लो, वो भी वही बोल रहा है जो सेल वाला बोल रहा था। So you put all the things and there is a thread with binds and says कि बॉस ये तो सही हो रहा है, you have to connect the dots and you say कि बॉस हो रहा है, ये तो नंबर तो आ ही रहे हैं। Who thought कि गोदावरी जितना वो सेल करता था उतना वो जितना पूरे साल में सेल करता था अबिटा उतना करने लगा है। Agreed. Zero debt, this is not a कि चलो होने वाला है, आप मानो कि चलो यार 20,000 अबिटा नहीं करेगा, मैं बोला 15,000 की कैलकुलेशन में पकड़ लो। So you have to come across some numbers ना। So and just to reverse it, सब mistakes करते हैं, any of the mistakes from what you have learned and any patterns you want to share by which one can avoid mistakes in life on stocks? नहीं, पैटर्न एक ही है कि आप पढ़ लिख के लो और दूसरों की बात सुनो, पर प्लीज अपना काम करो। I'll tell you honestly, from me, my mistake, there are many mistakes I did,
But one biggest mistake when I was into that SME investing was just trusting and thinking कि management ये कर देगा. There was a hope कि यार ये 4-5 की P पे मिल रहा है, and there were assumptions which were just वो होता ना दिमाग में डाल लिया कि ये 15% ग्रो करेगा, 20% ग्रो करेगा, 25% ग्रो करेगा, और आज 5 का पी है तो कल 10 का पी मिल जाएगा, बस सब दिमाग में था. बट कभी हम लोग पीछे नहीं गए थे देखने के लिए कि एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, यू नो. और जब पीछे जाओ तो बोलते हैं यार ये तो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी वाला तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, बुक्स नहीं बनाता. तो दैट इज वाई मैंने आपको क्या बोला कि हमने अभी सिस्टम भी बना दिया है कि एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए 20 साल का डेटा देखो. सो आज कोई भी एनालिस्ट आता है हमारे पास, सबसे पहले बोलता है बस 20 साल का डेटा दिखा, बाद में बात कर, एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ. सो मेरा सबसे बड़ा गलती था दैट ट्रस्टेड फ्यू कंपनीज जहां पे वी नेवर वेंट बैक, बट वी जस्ट अपने ख्यालों में खोए रहे कि हो जाएगा. अनदर मिस्टेक वाज प्रेक्सिस, यू नो, क्योंकि वो यू नो पेंटालून वो बियानी जी की कंपनी है, मार्केट कैप छोटा है, छोटे मार्केट कैप में बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है. बियानी जी तो एग्जीक्यूट करेंगे. फिर बियानी जी से जब मिलते थे तो और यू नो प्रसन्न हो जाते थे कि भैया ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इतना बड़ा हो जाएगा, वो खुद बोलते थे. सो आई थिंक समटाइम्स यू नो जस्ट मीटिंग मैनेजमेंट टू ऑफन इज वेरी बैड, यू नो, बिकॉज यू गेट बायस्ड. और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका, क्योंकि अगर आपको चेक भी करना है, वन जो मैंने आपको बोला 20 साल का डेटा देख लो, दूसरा आप 5 या 6 उनकी लास्ट की कॉन्फ्रेंस पढ़ लो और देखो उन्होंने किया कि नहीं किया काम, मुझे उन्होंने बोला कि नहीं किया. आई शो यू एक और चीज, क्योंकि दिस कम्स टू द क्या बोलते हैं यू नो दिस थिंग. सो हमने एक और छोटा सा काम किया आयुष भाई, हमने अपना ना पर्सनल एक फॉरेंसिक मॉडल बनाया हुआ है. यू कैन नेम एनी कंपनी जो आपका मन करे, whichever company you want, you know, जैसे one of the company again which I've been talking in public is Carborundum. तो इसमें हमने क्या किया कि कोई भी कंपनी है, जो भी लिस्टेड कंपनी है, उसका मैं कुछ फैक्टर्स पे 113375 ये हमारा वो हो जाता है, फॉरेंसिक चेक हो जाता है कि कैश फ्लो टू एबिटा, एबिटा बनाया पर कैश फ्लो में आया कि नहीं आया. सो आपको लास्ट 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, यू विल अंडरस्टैंड कि 82%, 77%, 77%. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, वॉलेटिलिटी इन डेप्रिसिएशन रेट्स. सो यू कैलकुलेट द लास्ट 10 years डेप्रिसिएशन. प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेटर्स क्या हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स कि P&L में क्या दिखा रहा है, कैश फ्लो में क्या दिखा रहा है, डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन कितना है पैट में, कैश यील्ड कितना है, रिजर्व्स में चेंज कितना ऑफन हो रहा है और कितना हो रहा है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ कितना है, देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, स्लीप टू ग्रॉस फ्लो कितना है, मतलब ऑल दोस थिंग्स व्हाटएवर वी कुड डू इन टर्म्स ऑफ चेकिंग द दोस थिंग्स ना. कैपिटल एलोकेशन कितना है, कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया, सही हुआ कि नहीं हुआ, एंड यू हैव टू सी अ ट्रेंड फॉर द लास्ट 5-10 years, नॉट कि 1 साल का देख लिया. तो उस गलतियों ने बहुत चीजें सिखाई हैं कि आपको सबका सुनो अगर आपको सुनना है, बट आप अपना होमवर्क करो और होमवर्क डेटाबेस करो. मतलब उनकी बातों में मत खो जाओ कि उन्होंने बोल दिया तो हो जाएगा, उन्होंने बोल दिया तो हो जाएगा. यू हैव टू डू योर होमवर्क, सी दैट एग्जीक्यूशन हैज हैपेंड और नॉट. देयर वाज नो एग्जीक्यूशन इन एसएमईज, देयर वाज नो एग्जीक्यूशन इन प्रैक्टिस, एंड आई एम टेलिंग यू कि वी हैव टू, अगर यही चीज मैं सपोज करो 5 साल बाद पकड़ता ना, जब नंबर्स आगे होते, आई थिंक दैट हैव बीन मच बेटर. और ऑनेस्टली स्टॉक क्योंकि पैसा तब भी बनता है, एग्जीक्यूशन के बाद भी बनता है, एंड वो ज्यादा बनता बिकॉज नंबर्स वर देयर. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मैं सबसे पहले पकड़ूं, वो गलत हो जाता है कई बार, बिकॉज दे थिंक कि मैं सबसे पहले हूं बिकॉज मेरा पैसा ज्यादा बनेगा, वो कभी होता नहीं है. यू नो इट्स मच बेटर एंड सेफर कि यू सी द एग्जीक्यूशन एंड देन जंप ऑन. Beautiful, sir. These were all the questions from my side. Pranav, do we want to open it with the audience some questions, or how do you want to take it forward? I think we have some Q&A in the Q&A The chat box. Yeah. we would avoid stock specific questions, but we can just run through them. I think you can run through them from the Q&A box. Yeah. So first question is, how do you screen filter a stock? I think this was showcased during the presentation itself, so we can skip this one. Which tool were you using for the screener? I think that's an in-house tool with Accord data tie-up, I believe.
right? Yeah. That's the internal tool, because one thing what we have tried, Ayush bhai, from the day one is building a separate data team. So we have, at least 4 people who are working in the data team with collective experience of nearly 60 years. तो जो आपसे सीखा है हमने कि जितना हो डेटा में रखो, बट मेरा बीमारी क्या है कि मुझे डेटा चाहिए जिस तरीके से वो सामने आए, तो इट शुड बी वेरी सिंपल, जो हम बस लेके यूज देख सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. Which sector is good anytime to invest, FMCG or IT? ये तो I think it's fun. What's your view on PSU or banking sector if you want to take it? सर मैं इनका ठीक है कि I think lots of questions are more on stock or specific, which we can avoid. Yeah. So my ending thoughts, Ayush bhai, and for everyone will be one simple thing कि boss, आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या है. आप please, there are enough opportunities in India which will make you a lot of money. गलतियां होंगी, सबसे होंगी, हमसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, बट गलती उतनी बड़ी मत करो कि विकेट से बाहर चले जाओ. घर जाके जो भी स्टॉक लिए हुए हैं उनके सामने कोशिश कीजिए आज ये लिखने के लिए कि वो स्टॉक क्यों लिया था. If you don't find an answer, trust me, there is something wrong. अगर अच्छा कंपनी होगा तो हो सकता है कि आपका पैसा कम बने, हमारा थोड़ा ज्यादा बन जाए, इतने डिफरेंस होगा, बट पैसा कभी खोगे नहीं आप. Zero is always greater than minus. So it's okay. But वो मत करना कि मालूम ही नहीं क्यों पैसा डाला था, उतना थोड़ा सा ख्याल रखिए. Beautiful. I think there's the most important advice. If someone can write a short note on why he is invested in a company, what his objective is, why एक rational लिख दें, वही सबसे बड़ी एक खुद के लिए help होगी. एक question था, I think one question we missed was कि you mentioned about some journals or magazines. Any books or magazines that you want to share or name? So we keep on reading whatever comes in our hand, honestly, we have subscribed to a lot of data. So there is maybe आप भी शायद use करते होंगे, Romulus एक है, software है. We keep using that a lot because it helps us to have all the aggregated information wherever we get into one page. So local, global, journals, everything comes to us in that manner. I think in India, so it has to be very sector specific. तो अगर आप सेक्टर का बात करो तो उसके अलग जर्नल्स आते हैं. अगर आप नॉर्मल ज्ञान लेना चाहते हैं तो नॉर्मल ज्ञान में ET इंटेलिजेंस डज अ वेरी गुड वर्क, केन डज वेरी वेरी गुड वर्क. यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग. एंड ऑनेस्टली मैं उससे भी सिंपल करता हूं मैं आपके लिए. आयुष भाई, मैं 2 घंटे ना कुछ भी हो जाए सुबह मैं रोज पढ़ता हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर, ऑल द ब्रोकरेज नोट्स व्हिच कम्स, ऑल व्हाट हैपेंड इन द लोकल, ग्लोबल, कोई भी जो कुछ बोल रहा है 2 घंटे पढ़ता हूँ और अपने नोट्स बनाता हूँ. नॉट कि हाँ भी क्या हुआ है. सो इवन इफ यू रीड, आई सी द बिगेस्ट चैलेंज आयुष भाई मैं बता रहा हूँ आपको, व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ टीम ना, हमें लगा कि चलो ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, एंड सडनली वी रियलाइज यार कि हमारे पास रोज का कम से कम 10-15 रिपोर्ट्स आता है रोज का. तो सुबह 5 मिनट हम बात करते हैं, खत्म कर देते हैं, बट उसका एफिशिएंसी कभी यूज होता ही नहीं है. देयर आर सो गुड रिपोर्ट्स व्हिच कम बट वी नेवर रीड. देन वी थॉट विल कीप अ रीडिंग एनालिस्ट. Because there are some great people who does beautiful work, I can name Bernstein, Spark Capital and all. They do very very good work. But trust me, हमारा दिमाग क्या बन चुका है, रिपोर्ट आया, कौन से स्टॉक पे आया, कितना टारगेट प्राइस है, क्योंकि टीवी वाले वो दिखाते थे बस कंट्रोल है टारगेट. इतना बढ़िया वो देयर वाज सच अ ग्रेट रिपोर्ट फ्रॉम सीए. इसका आया था, उसने they went to China, they visited all the provinces and they gave the ground report on how the entire supply side is happening. और लेकिन वो वाला रिपोर्ट टीवी पे डालेंगे नहीं, और रिपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं किसी को. सो आई एम सेइंग कि रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो मेरे लिए हमने पहले से सोचा बॉस कीप अ रीडिंग एनालिस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च एनालिस्ट से भी जरूरी रीडिंग एनालिस्ट है. So my only thing is कि please पढ़ते रहिए यार, और कुछ नहीं है. You have to make your own notes. अपने हाथ से लिखो. हमारे उद्दन सर होते थे ना आयुष भाई, वो भी ऐसा करते थे. सुबह आते थे, सारे पेपर पढ़ते थे, एक ब्लैंक पेपर लेते थे, ब्लैंक पेपर पे हाथ से लिखते थे.
हाथ से लेके जो सीखोगे ना उसका मजा ही अलग है, एंड दैट रिमेन्स विद यू. Perfect. Very true. Very practical and useful advice. I think, Pranav, we have already crossed the time, so we should maybe wrap up now. Yeah, I think thank you, Mr. Bansal. Thank you, Ayush. I think very practical information, and fully agree that people have to do homework. अगर खुद का पैसा है और होमवर्क नहीं कर रहे हो तो फिर किसी को ब्लेम मत करना, ना मार्केट को या कोई एडवाइजर, ना फंड मैनेजर. अरे पर मैं बार ये बोलता हूँ बॉस, हम लोग 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए. उसके लिए क्या 15 मिनट हम लोग पढ़ नहीं सकते? 10 मिनट कम टीवी देख लो यार, आधा घंटा कम टीवी देख लो. एब्सोल्युटली. आज सैटरडे को भी काम करा रहे हो आप लोग, तो काम तो करते हैं ना हम लोग, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा क्यों नहीं हम लोग अपने पैसे के लिए काम कर सकते? आई एम टेलिंग यू, आज भी ये लोग घर पे जाके ना लिखेंगे ना, इवन इफ दे राइट one line on the stocks what they have, it will not take more than half an hour, but कोई करेगा नहीं. Yeah, and I think we have a mental block that research is like too much work, etc. But if you plan it efficiently, even if you have an entrepreneur or even if you have a factory or something, you can definitely take some time out to know the basics, like you mentioned, those 10 points. Just write them. और आज मैं आपको आयुष भाई एक चीज बताता हूँ, आरजे सर में और हम में क्या डिफरेंस है. What is the difference? उनको बस स्टॉक पे बैठना आता है, खोजना तो हमें भी आता है. It is, and a lot of people might have bought Titan before even RJ sir. बैठना आता है. वो बैठना कैसे होगा? अगर you know that thing again and again कि boss your story is right, and the money will only be made अगर आप उस चीज पे अपने वो certain big allocation पे बैठे हो. तो उनमें वही कला है, बस वो बैठना आता है. So the research does not teach you how to get the stock. वो ठीक है, one part है, but more important strength of research is how to sit on the stock. Very true. वो ज्यादा जरूरी है. Yes. And unfortunately, I'll tell you honestly, ये जो मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, because it makes your, ये जो है ना, इतना ऐसा कर देता आपको. ये कभी ऐसा नहीं करता. That I know वो because वो उनका काम है, they are right in that, but your horizon becomes this way. That is very wrong. But Perfect. Thank you so much. Thank you, Ayush. Thank you, Virender. Everyone, thank you for joining. Thank you for taking this Saturday out. Yes, sir. Great. So see you again soon, hopefully. Thank you. Thank you, Pranav bhai, for the opportunity, and thank you, Ayush bhai. Thank you. Next time मैं जल्दी बुला रहा हूँ आपको, ठीक है ना? अभी बहुत हो गया.